सपोज एक सर्कल है, विद सेंटर O, एक बॉडी या पार्टिकल जिसका मास लेट अस से m है, उसकी लीनियर वेलोसिटी ये, ठीक, लेट अस से v1 इस जगह पे एट सर्टेन टाइम लेट अस से t1, दिस इज द रेडियस ऑफ सर्कल विद सेंटर O। नाउ सर्कुलर, अगर ड्यू टू इनर्शिया जो बॉडी होनी चाहिए वो सीधी चली जानी चाहिए, स्ट्रेट लाइन, लेकिन सर्कुलर मोशन में क्या है, सपोज एक टाइम पे यहाँ पहुंची बॉडी, लेट अस से इट इज वेरी क्लोज टू दिस, यहाँ वेलोसिटी की डायरेक्शन ये होनी चाहिए स्ट्रेट लाइन में, लेट अस से v2, तो बॉडी सीधे जाने के बजाय टर्न घूम रही है एट एवरी पॉइंट। अगर मिसाल के तौर पर यहां पर लूं, जो वेलोसिटी होनी चाहिए इस डायरेक्शन में, लेकिन जा किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में जा रही है। सो कोई चीज है जो इसकी डायरेक्शन चेंज कर रहा है, वो कौन सी चीज है, वो एक फोर्स है जो सेंटर की तरफ लगता है अलोंग द रेडियस ऑफ द सर्कल। दिस force which acts along the radius towards the center of the circle and keeps the body in circular motion is called centripetal force, ठीक है। so what is centripetal force? it is, देखो फोर्स कैसे आता है, यहां पर अगर वेलोसिटी v1 है, यहाँ v2 है, तो वेलोसिटी चेंज हो गई, भले ही वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड यानी स्पीड सेम हो दोनों जगह, लेट अस से v1 v, लेट अस से v, यहाँ पर भी स्पीड v है यहाँ, लेकिन चूंकि डायरेक्शन चेंज हो गई, वेलोसिटी वेक्टर है, जब वेक्टर चेंज होगा बाय चेंजिंग डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड और बोथ, चूंकि यहाँ पर सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो जब चेंज हो रही है तो वेलोसिटी जब चेंज होगी टाइम t1 से लेट अस से t1 टू t2, ठीक, तो so there will be a rate of change of velocity, rate of change of velocity क्या होगा, acceleration, so this body is accelerating, ठीक। now acceleration में accelerate कौन चीज का, जब उस पे कोई फोर्स हो वही accelerate होगा, वरना accelerate नहीं होगा, तो जो वो फोर्स है वो सेंटर की तरफ होता है along the radius, this is called the centripetal force। so what is centripetal force? it is the force which keeps the body to move in a circular path, it acts along the radius, it acts along the radius towards the center, this is also called as center seeking force, center seeking force। so ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये बॉडी को रखता है किस में, इन सर्कुलर मोशन। अगर ये सेंट्रीपिटल फोर्स ना होगा तो बॉडी सीधी चली जाएगी स्ट्रेट लाइन। नाउ इससे पहले हमने पढ़ा था सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, तो मैंने कहा कि जब बॉडी की डायरेक्शन चेंज हो जाती है तो ऑटोमेटिकली वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, सो देयर विल बी अ एक्सेलरेशन, दिस एक्सेलरेशन इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। दैट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन AC we have already calculated is equal to v square by r, where v is the speed of the body and r the radius of that circle. Now we know according to Newton's law, force acting on a body is equal to mass into acceleration. So if we have centripetal force, we write it as Fc. Now mass of a body is m, acceleration is v square by r. What is r? R is the radius of that circle, v is the velocity or speed, and m is the mass of the body. So centripetal force is equal to m v square by r, ठीक है। Now we also know the relation v is equal to r omega. What is omega? Omega is the angular, omega is angular velocity, ठीक। So if we substitute here, what we'll get? Fc will be equal to m, v के बदले में लेंगे r omega whole square divided by r. So this will come out to be Fc is equal to m
r square omega square by r and this will cancel. So centripetal force has another relation m r omega square. ये एक और relation is. Also, we know that omega is equal to 2 pi into nu frequency. What is this? Linear frequency. ठीक? So if we substitute in this equation, so what will be then centripetal force? Fc will be equal to omega के बदले में लिखेंगे 2 pi. No, 2 pi nu. So m r 2 pi यहाँ स्क्वायर है, so 2 pi nu whole square. So this will be equal to m r 4 pi square nu square or 4 pi square m r nu square. So this is another relation for this. Also यहाँ पर लिखूंगा मैं omega is equal to 2 pi by t. What is t? T is the time period. What is time period? Total time taken to complete one revolution. Okay, पूरा अगर यहाँ से A से स्टार्ट हुई बॉडी फिर पूरी यहाँ पूरा सर्कल करेगी और A पर पहुंचेगी, तो जितना टाइम यहाँ तक लगा उसको कहते हैं टाइम पीरियड t. ठीक, if we substitute in this, here in this what will get? Fc will be equal to m r omega square, that is 2 pi by t whole square. This comes out to be m 4 pi square m r divided by t square. This is another relation for centripetal force. अब ये कहाँ लगता है centripetal force? When earth revolves around the sun. Let us say this is sun and this is earth. तो जब ये रिवॉल्व करते हैं तो ये सर्कुलर मोशन ऑलमोस्ट है, तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है यहाँ पर वो ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन सन एंड अर्थ प्रोवाइड करता है। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन अगर इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन भी सर्कुलर पाथ में घूमता है न्यूक्लियस के, तो वहां ये सर्कल में घूमने के लिए जरूरी है सेंट्रीपिटल फोर्स होना चाहिए जो उसको चला सके। तो वो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस जिसमें प्रोटॉन होते हैं न्यूक्लियस में, वो वहां पर फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स, ठीक, तो वो जो अट्रैक्शन होती है उसकी वजह से वही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। ठीक,